A very good morning, children. Settle down quickly. Children, आज हम लोग दो टॉपिक्स करने वाले हैं. Today we are going to be covering two topics. One is going to be heat and the another one is going to be metallurgy. Okay, एक heat रहेगा और दूसरा metallurgy टॉपिक रहेगा. ये दो टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे. And I want your textbooks to be with you. सबके पास textbooks है? Is everyone having the textbook with them? Okay. Because मुझे टेक्स्ट बुक्स चाहिए. There are going to be some things that we are going to be referring. Okay, no problem. Digital copy रहेगा तो भी चलेगा, hard copy रहेगा तो भी चलेगा. Whatever you are comfortable with, kids. Who is this? Android, Blue Droid. Please change your name. There is some device, Android, Blue Droid or something like that. Request you to please rename yourself. Humble request. And children, there is absolutely nothing to panic with respect to the CET. जितना आपको जमने वाला है उतना आपको करना है. You don't have to take much stress about it. ज़्यादा stress नहीं लेना है अपने को. Properly we have to try to just working and studying is in our hands. बाकी results है जो है वो अपने हाथों में नहीं है. So just remember this thing that you need to work hard. काम करो अच्छा, result मिलेगा. And don't worry, all of you all will get admission. Especially ICSE children are very much stressed out कि sir हम लोग को कैसे होगा, whether we are going to be able to get admission into colleges. Don't worry, होंगे colleges admission होंगे, सब properly होगा. चलो quickly settle down children, fast. हाँ but participants काफी कम है यार. There are just 97, 98. 200 generally होते हैं but lectures में. That is why I am waiting. And don't get stressed. अपने को stress बिल्कुल नहीं लेना है. Good morning everyone. Be calm, be composed. मैं दोनों ग्रुप्स पे 1 मिनट मैसेज पोस्ट करता हूँ.
ज्वाइन करो करके। We'll wait for another 2-3 minutes, children, and then begin. Everyone, please open chapter 5 of your textbooks. Chapter 5 open karo, please. And just read through the first 2 pages. फॉर्म्स भर दिए हैं सब लोग ने? Has everyone filled up the CET form? जिसने नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी कर दो। जिन्होंने नहीं किया है वो जल्द से जल्द प्लीज फॉर्म को फिलअप करो चिल्ड्रन। आज लास्ट डेट है या कल लास्ट डेट है? कभी लास्ट डेट दिया है? 2nd August. Okay. So it's I guess Monday रहेगा लास्ट डेट। चलो, I think so we'll begin now children. 151 है, we are good to go. So for people who have registered before 26, हाँ हो गया ना registration तेरा बेटा? I don't feel वही रहेगा। They might have given some guidelines for the children who have already registered. That you need to check with the local authorities, beta. We can't be doing anything in that because वो आपको either you call your school or you try to call the board helpline. Okay, चलो। अब अपने को हीट ये चैप्टर करना है चिल्ड्रन। अब जो ये चैप्टर एसएससी टेक्स्ट बुक्स में है, एसएससी टेक्स्ट बुक में वो काफी यू कैन से छोटा सा चैप्टर है। इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर बट there are many nuances into it. Okay, काफी nuances है children. Just a moment, I'll just get the duster. Given the duster. गिरन भाई, इधर का डस्टर किधर गया? डस्टर उधर मिल गया। ओके, सो नाउ चिल्ड्रन, अगर हम लोग हीट एज अ चैप्टर और अ टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो जो पहला कॉन्सेप्ट उन्होंने बोला है, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट दे हैव सेड इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। Now, what is this concept of latent heat, children? Latent heat का concept क्या है? Suppose I have a particular beaker. मेरे पास एक beaker है, and that beaker is filled with ice cube. Okay, मैंने उसमें ice cubes डाले हैं. It's entirely filled up with ice cube.
ऐसे आइस क्यूब से भरा हुआ है, पार्डन माय ड्राइंग, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं इसको हीट करने वाला हूं। ओके, आई एम गोइंग टू हीट दिस पर्टिकुलर बीकर, इस पर्टिकुलर बीकर को मैं हीट करूंगा। अब जब मैं हीट करने वाला हूं चिल्ड्रन इस बीकर को, जब इस बीकर को मैं हीट करने वाला हूं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है चिल्ड्रन, सपोज जो टेम्परेचर है आइस का, दैट वाज समवेयर अराउंड 6 डिग्री, -6 डिग्री सेल्सियस वगैरह आइस का टेम्परेचर है। -6 डिग्री सेल्सियस से मैंने उसको हीट करने के लिए चालू किया। मैंने हीट करने के लिए चालू किया तो वो -5 पे आ गया, फिर -4 पे आ गया, फिर -3 पे आ गया, फिर -2 पर आ गया, फिर -1 पर आ गया और फिर 0 पर आ गया। अब जब 0 पे आया ना ये चिल्ड्रन, तो 0 पे मैंने एक एकदम अलग सा ऑब्जर्वेशन किया। अलग सा ऑब्जर्वेशन क्या था कि टाइम तो आगे बढ़ रहा था, मैं हीट कर रहा हूं, हीट सप्लाई कर रहा हूं, टाइम भी आगे बढ़ रहा है, 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, पर टेम्परेचर 0 पे कांस्टेंट है। टेम्परेचर 0 पे कांस्टेंट था, ना वो टेम्परेचर राइज हो रहा है ना वो टेम्परेचर घट रहा है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई राइज होने वाला है, बट वो ना राइज हो रहा था ना वो घट रहा था। What was exactly happening? That the temperature remained constant, constant रहा at 0 डिग्री सेल्सियस for some time। अब वो क्यों कांस्टेंट रहा? वो कांस्टेंट इस चीज के लिए रहा कि जो कुछ भी आइस यहां पर अंदर था, जो कुछ भी आइस यहां पर अंदर था, वो सारा मेल्ट होने दिया उसने। क्या दिया उसने? वो सारे आइस को मेल्ट होने दिया। एंड वो सारा आइस जब तक मेल्ट नहीं हुआ, तब तक द टेम्परेचर रिमेन्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक बार वो सारा आइस मेल्ट हो गया, then it got converted to water. What did it get converted to? It got converted to water at 0 degree Celsius. What did it get converted to, children? It got converted to water at 0 degree Celsius. And ये जो change था, that was a phase change. क्या था ये चिल्ड्रन? दिस वॉज अ फेज चेंज। फेज चेंज माने क्या? द फेज गॉट चेंज फ्रॉम सॉलिड दैट इज आइस टू वाटर दैट इज योर लिक्विड। आप देख सकते हो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में ट्रांजिशन हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब क्या? द अमाउंट ऑफ हीट which is going to be absorbed at constant temperature by a unit mass of a solid to get converted into a liquid is called as the latent heat of fusion। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? latent heat of fusion। तो हमेशा याद रखना चिल्ड्रन, लेटेंट हीट ये जो सब ये रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेटेंट हीट क्या है? इट इज गोइंग टू बी द हीट दैट इज गोइंग टू बी अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। जैसे जब ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे था, तभी वो अब्सॉर्ब कर रहा था, अब्सॉर्ब कर रहा था, अब्सॉर्ब कर रहा था। तभी टेम्परेचर बढ़ा क्या? टेम्परेचर नहीं बढ़ा, सिर्फ उसने हीट खींचा। तो वो हीट गया किधर? वेयर डिड दैट हीट गो? वो हीट गया, व्हाट हैपेंस इज चिल्ड्रन, आइस इज इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड के बॉन्ड्स एकदम स्ट्रांग होते हैं फेविकॉल जैसे, तो उसको वीक करने के लिए टाइम लगता है। वीक करने के लिए टाइम लगता है, इसके लिए वो आइस सारा हीट अब्सॉर्ब करते रहता है। तो जो हीट अब्सॉर्ब किया रहता है, उसके वजह से वो बॉन्ड फ्रेजाइल हो जाते हैं, उसके वजह से वो बॉन्ड वीक हो जाते हैं। एंड जब वो बॉन्ड वीक इतने एक्सटेंड तक हो जाए दैट द पार्टिकल्स बिकम अपार्ट एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, तब तक वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको समझा है ये कॉन्सेप्ट? यस और नो किड्स? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी
मैं इसको वापस हीट कर रहा हूँ, वापस हीट करते जा रहा हूँ, वापस हीट करते जा रहा हूँ, वापस हीट करते जा रहा हूँ। अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, फटाफट 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 टेम्परेचर बढ़ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 से गया 95, 95 से गया 96, 97, 98, 99 एंड देन 100। अब 100 पे टेम्परेचर है, बुड़बुड़ा हो रहा है, बुड़बुड़ा हो रहा है, बुड़बुड़ा हो रहा है, बॉइल हो रहा है, बॉइल हो रहा है, बॉइल हो रहा है। अब बॉइल हो रहा है तब तक तभी भी मैंने एक एकदम अलग ऑब्जर्वेशन किया। अभी भी मैं देख रहा हूँ, मेरी घड़ी देख रहा हूँ, यार बढ़ ही नहीं रहा है, वापस हीट करते जा रहा हूँ, हीट करते जा रहा हूँ, गैस वेस्ट कर रहा हूँ मेरा, हीट करते जा रहा हूँ, हीट करते जा रहा हूँ, कांस्टेंट है, 100 पे कांस्टेंट है, 100 पे कांस्टेंट है। मतलब अभी वापस क्या होने वाला है, द वाटर विच इज नाउ एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो पानी अब 100 डिग्री सेल्सियस पे है, वो भी हीट खींच रहा है, हीट खींच रहा है, हीट खींच रहा है, हीट खींच रहा है, हीट खींच रहा है। क्यों हीट खींच रहा है? उसको भी फेज चेंज करने का है, उसको भी फेज चेंज करने का है। जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था वो उसका मेल्टिंग पॉइंट था आइस का, ओके। एंड अभी जो 100 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज व्हाट, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो अभी भी क्या होने वाला है, वो हीट खींच रहा है, हीट खींच रहा है, हीट खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? बॉन्ड्स को और वीक बनाना है, बॉन्ड्स को और वीक बनाना है, और वीक बना के उनको कन्वर्ट कर देना है इनटू द वेपर फॉर्म। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है उनको? इनटू द वेपर फॉर्म। सो देयर आर टू लेटेंट हीट जो हम लोग एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में पढ़ते हैं। दो टाइप के लेटेंट हीट्स होते हैं। एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन माने क्या चिल्ड्रन? सॉलिड स्टेट से उस सब्सटेंस को लाना है इनटू द लिक्विड स्टेट। उसके लिए वो कितना हीट अब्सॉर्ब करेगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हो गया एक। सेकेंड होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन मतलब क्या? हम लोग उस सब्सटेंस को कन्वर्ट करने वाले हैं फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट और द वेपर स्टेट, एंड वो भी होने वाला है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? वी कॉल इट एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको समझी है ये चीज कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? ग्रेट ग्रेट। अभी चिल्ड्रन अपने को क्या याद रखना है? व्हाट वी हैव टू रिमेंबर चिल्ड्रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ वो जो अपने को याद रखना है दैट इज हियर, एंड दैट इज द डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन अपन कैसे याद रखने वाले हैं? अब मैं बात करूंगा ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहले मैं क्या बात करूंगा? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? The amount of heat energy absorbed by a unit mass of a solid at a constant temperature to get converted from solid to liquid phase is called specific latent heat of
फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और एक दूसरी चीज होती है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक क्या होता है चिल्ड्रन? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन का डेफिनेशन क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी? कोई ऐसे मुझे बता सकता है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसमें वर्डिंग्स को चेंज नहीं होने वाले हैं चिल्ड्रन। द वर्डिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। इट्स गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय अ यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड के जगह पर आएगा लिक्विड। सॉलिड के जगह पर क्या आएगा? लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर टू गेट कन्वर्टेड फ्रॉम liquid to the gaseous state or to the vapor state is called as your specific latent heat of vaporization. So how do we frame it? The amount of heat energy absorbed by a unit mass of a liquid at a constant temperature to get converted from liquid to vapor phase is called specific latent heat of vaporization. अभी हमेशा याद रखना, जब हम लोग लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे चिल्ड्रन, तो लेटेंट हीट में हमेशा एक चीज हमारे दिमाग में क्लियर करनी है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है, फेज चेंज होता है। फेज क्या होता है? चेंज होता है। फेज क्या होता है? चेंज होता है। ओके, एंड दिस यू कैन ऑल्सो रेफर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट रिफर्स टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। ओके, ये किसको रिफर करता है? इट रिफर्स टू द मेल्टिंग पॉइंट, एंड दिस रिफर्स टू द बॉइलिंग पॉइंट। एंड हमेशा याद रखना, स्पेसिफिक हीट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ये सारा डिपेंड करता है ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट डू ऑल दीज यू कैन से क्वांटिटीज डिपेंड अपॉन? इट डिपेंड्स अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सारी चीजें डिपेंड करती है ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर विद दिस चिल्ड्रन? समझा है सबको? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी चिल्ड्रन कुछ ना यूनिट्स भी है। ओके, यूनिट्स क्या है वो अपने को देखना है। ओके, यूनिट्स क्या है वो अपने को देखना है। यूनिट्स अगर हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक हीट के जो होते हैं फॉर यू कैन से फ्यूजन और वेपराइजेशन, एसआई यूनिट एंड एसआई एंड सीजीएस। अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करते हैं ना चिल्ड्रन, तो एसआई यूनिट जो है, दैट एसआई यूनिट इज एक्चुअली जूल्स पर केजी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? जूल पर केजी। बट व्हाट हैपेंस इज, जूल में अब्सॉर्ब किया हुआ एनर्जी इज रियली वेरी लेस, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज किलो जूल पर केजी। हम लोग इसको किलो जूल पर केजी रेफर करते हैं, एंड सीजीएस यूनिट हम लोग रेफर करते हैं एज कैलोरी पर ग्राम। सीजीएस यूनिट हम लोग क्या रेफर करते हैं? एज कैलोरी पर ग्राम। क्लियर विद दिस? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट? ये फर्स्ट पार्ट था लेटेंट हीट का। ओके, ये फर्स्ट पार्ट था लेटेंट हीट का। इज एवरीवन क्लियर विद दिस चिल्ड्रन? ओके, great, great, great. I'll just click a picture of this
and then we shall move ahead. Okay. ये हो जाने के बाद चिल्ड्रन जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द कंसेप्ट ऑफ रेगुलेशन. ओके, रेगुलेशन का कंसेप्ट है ये. नाउ व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ रेगुलेशन? एवरीवन पे केयरफुल अटेंशन. सब लोग एकदम ध्यान से देखना ये रेगुलेशन के कंसेप्ट. अब रेगुलेशन का कंसेप्ट क्या है चिल्ड्रन? सबने गोला खाया है? गोला गोला खाया है सब लोग ने? जूहू बीच पे जाके गोला खाया है ना? तो वो गोले वाले अंकल क्या करते हैं? गोले वाले अंकल आइस का स्लैब रहता है, वो आइस का स्लैब ही पुट्स इनटू द चर्निंग मशीन. वो चर्निंग मशीन में आइस का स्लैब डालते हैं एंड ही मिक्सेस इट ओवर, ही चर्न्स इट. वो चर्न करते हैं तो क्या हो जाता है चिल्ड्रन? he gets that fine, you can say, powder of ice. आइस का एकदम फाइन पाउडर मिलता है और फिर वो क्या करते हैं, एक स्टिक होता है, वो स्टिक को तोड़ते हैं एंड वो आइस के बीच में डालते हैं एंड ही अप्लाइज प्रेशर. वो प्रेशर अप्लाई करते हैं. प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वो एक प्रॉपर गोले का शेप ले लेता है, जैसे एक लॉलीपॉप का शेप ले लेता है. ओके, सो नाउ व्हाई डज दिस हैपन? क्यों ये चीज होती है? कभी किसी ने सोचा है ऐसा क्यों होता है? एनीवन? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ रेगुलेशन. ओके, वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है बिकॉज ऑफ रेगुलेशन. तो व्हाट हैपेंस? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है दैट बिकम्स लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, ड्यू टू द प्रेशर. बिकॉज वो अंकल क्या कर रहे हैं? ही इज अप्लाइंग प्रेशर. He's trying to hold those ice particles together. Okay, वो ice particles को साथ में रख रहे हैं. They are keeping those ice particles together. He's trying to keep those ice particles together, and that is why what is going to happen is, since the ice particles are kept together, उसके ऊपर pressure apply किया गया है. क्या apply किया गया है? Pressure apply किया है. उसकी वजह से उसका melting point हो जाता है. It becomes lower than 0 degree Celsius. Okay, due to the applied pressure. इसका मतलब क्या है? at 0 degree Celsius ice जो है that does not get, ice is going to get converted into water. at 0 degree Celsius जो ice water में convert हो जाता है pressure के वजह से, the melting point becomes lower than that particular temperature, and hence what happens is ice के जो particles होते हैं वो melt होते हैं because of the applied pressure, and as soon as हम लोग वो pressure को release कर देते हैं then it gets restored, the melting point gets restored to 0 degree Celsius. So what happens is ice particles melt due to the applied pressure. Melting point gets lower than 0 degree Celsius. वो क्या हो जाता है? वो बन जाता है lower than 0 degree Celsius. Okay, so now what happens children? Suppose मेरे पास एक ऐसे आइस का शीट है. Okay, I have an ice sheet like this with me. और इस आइस शीट के ऊपर मैं दोनों एंड से, from both the ends, I am going to apply some pressure by means of weight. मैंने एक थ्रेड अटैच किया है और मैंने दोनों साइड से वेट अटैच किए हैं इसके ऊपर. ओके, दोनों साइड से मैंने इसके ऊपर वेट अटैच किए हैं. ओके, सो सपोज आई हैव अटैच्ड वेट्स बाय ऑन फ्रॉम बोथ द एंड. मैंने बोथ द एंड से यहाँ पर वेट अप्लाई कर दिए हैं. एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन शिट? आई एम गोइंग टू स्लाइड दीज वेट्स थ्रू. मैं क्या करूंगा? इन दोनों वेट्स को ऐसे स्लाइड करूंगा. तो मैं क्या देखूंगा? आई एम अप्लाइंग प्रेशर. मैं यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं बिकॉज ऑफ विच द आइस इज गोइंग टू मेल्ट. ओके, द आइस इज गोइंग टू मेल्ट. तो ये धीरे 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 उसमें धसता जाएगा, उससे धसता जाएगा, धसता जाएगा.
बट मैं क्या देखता हूं, जैसे ही वो थोड़ा सा नीचे जाता है, ऊपर का लेयर वापस आइस बन जाता है, जैसे ही वो और नीचे जाता है, वापस ऊपर का लेयर आइस बन जाता है, जैसे और नीचे जाता है वैसे कट। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि आई एम स्लाइडिंग थ्रू। आपने सबने देखा रहेगा चिल्ड्रन, बटर का नॉब होता है, बटर मतलब आपका जो ये अमूल बटर होता है उसका ऐसा बड़ा सा नॉब होता है। आपकी नाइफ आपने देखी है, इट स्लाइड थ्रू, इट इज गोइंग टू स्लाइड थ्रू। या फिर आपका जो केक होता है वो स्लाइड थ्रू होता है और वो केक टूट जाता है। अभी इमेजिन करो, आप जब नीचे 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 वो केक कट कर रहे हो, तो आपकी नाइफ नीचे तो जा रही है पर ऊपर का केक वापस बंद हो रहा है। आप और नीचे जा रहे हो, ऊपर का केक बंद हो रहा है, और नीचे जा रहे हो, ऊपर का केक बंद हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज योर रेगुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज योर रेगुलेशन। तो एक पॉइंट ऐसे आएगा जहां पर ये पूरा थ्रू एंड थ्रू पास हो जाएगा, इट विल पास थ्रू एंड थ्रू, पूरा थ्रू एंड थ्रू पास हो जाएगा चिल्ड्रन। एंड आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये आइस के दो पीसेस हो जाने चाहिए, बट ऐसे कुछ भी नहीं होता है। नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपेंस। ये पूरा वेस्ट सिस्टम बाहर आ जाता है थ्रू द ice slab. And why does it come out through the ice slab? Ice melts due to the applied pressure because the melting point gets lower than 0 degrees Celsius. But when the pressure is released, जब pressure release हो जाएगा, तब the melting point will get restored. वो melting point क्या हो जाएगा? It will get restored back to 0 degree Celsius. Clear with this? Okay. So what happens? Once the pressure is released, the ice gets converted back, the water gets converted back to ice. Okay, ice particles melt हो जाता है because of the applied pressure. The melting point gets lower than 0 degrees Celsius. Once the pressure is released, the water gets converted back to ice as the melting point is restored back to 0 degree Celsius. वो melting point जो होता है, that is going to get restored to 0 degree Celsius. Clear with this? Everyone, have you guys understood this? So melting point decreases with increase in applied pressure. When you release the pressure, it gets restored back to 0 degree Celsius. And that is going to be a small concept, एकदम छोटू सा concept है of regulation. ये किसका concept है? Of regulation. ये कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू मूव टू एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब ये एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है चिल्ड्रन? व्हाट इज दिस एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर? तो हमको क्या देखना है चिल्ड्रन? जनरली liquids expand on heating and contract on कूलिंग। मेजॉरिटी ऑफ द लिक्विड्स, मेजॉरिटी जो सारे लिक्विड्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे एक्सपैंड ऑन हीटिंग। जब मैं उनको हीट करने वाला हूं तब वो एक्सपैंड करने वाले हैं, और जब मैं उनको कूल करने वाला हूं तभी वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। Now what do you mean by this expansion and what do you mean by contraction? Expansion and contraction are related to which two physical quantities? कोई मुझे बता सकता है? Very good. It is related to volume. सोहम शिंदे ने करेक्ट आंसर दिया है, it is related to volume. तो जब एक्सपेंशन होता है चिल्ड्रन, एक्सपेंशन में क्या होता है? What will happen in expansion? What will happen in expansion? Can anyone tell me? Volume increase होगा या volume decrease होगा in expansion?
एक्सपेंशन में द वॉल्यूम इंक्रीजेस। वेरी गुड। जब भी एक्सपेंशन होगा तभी जो वॉल्यूम है दैट विल इंक्रीजेस। ओके, वॉल्यूम इंक्रीजेस। एंड जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब क्या होगा? व्हाट विल हैपन व्हेन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन? वेरी गुड, वॉल्यूम डिक्रीजेस। वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ओके, द वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज। ओके, generally liquids expand on heating and contract on cooling. Expansion मतलब volume increases, contraction मतलब volume decreases. But इधर ही तो twist है, जो हमारा पानी है ये अलग ही बंदे हैं, एकदम अलग बंदा। ओके, इट इज कॉल्ड एज द एलिक्सर ऑफ लाइफ, बट उसके खुद के अलग अलग चोचले हैं पानी के। अब क्या चोचले हैं उस पानी के? तो देखो, इन द रेंज 0 to 4 degrees Celsius, it shows eccentric behavior. एकदम अलग, एकदम अजूबा वाला बिहेवियर वो दिखाता है, और वो अपने को पढ़ना है। I'll just click a picture, erase this off, and then we will study it. Okay, so what happens, children? What happens? 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में एकदम गजब बिहेवियर दिखाता है पानी। ओके, एकदम गजब बिहेवियर। Now what is this gajab behavior, children? That is something we have to understand. On heating from 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में जब हम लोग पानी को हीट करेंगे, when we are going to heat it, on heating from 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, जनरली पानी को एक्सपैंड करना चाहिए था ना, it should have actually expanded. Okay, but what happens is water contracts and its volume decreases. वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, उसका वॉल्यूम एकदम डिक्रीज हो जाता है। बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस it expands like any other liquid. ये हो गया on heating from 0 to 4 degrees Celsius. Now we go to on cooling from 4 to 0 degrees Celsius. Water expands and its volume increases. उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। After 0 degree Celsius, it contracts like any other liquid. मतलब क्या चल? वॉल्यूम जब हम लोग पढ़ते हैं तब हम लोग का और एक क्वांटिटी आता है इनटू पिक्चर। व्हेन वी स्टडी वॉल्यूम, स्पेशली फॉर लिक्विड्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग उनके वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं, तब और एक चीज चिल्ड्रन हमारे सामने आती है, और एक क्वांटिटी हमारे सामने आती है, विच वी प्रीडोमिनेंटली स्टडी अबाउट लिक्विड। हम लोग लिक्विड्स के बारे में पढ़ते हैं।
Can you name me that physical quantity? Very good. Anaga has given me the correct answer and she has told me कि सर डेंसिटी है वो क्वांटिटी जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग वॉल्यूम के बारे में पढ़ने वाले हैं. Whenever we are going to study about volume, we are going to study about density. मतलब क्या? Heating from 4 to 0 to 4 degrees Celsius. Okay, on heating from 0 to 4 degrees Celsius, what is going to happen? Temperature range 0 to 4 degrees Celsius on heating. On heating क्या होता है? Water contracts, its volume decreases. वॉल्यूम डिक्रीज होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है यानी डेंसिटी क्या होगा? डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है यानी द डेंसिटी इंक्रीजेस. वेरी गुड. डेंसिटी जो होता है वो इंक्रीज होता है. डेंसिटी जो होता है वो इंक्रीज होता है. अभी टेम्परेचर रेंज 4 to 0 डिग्री सेल्सियस ऑन कूलिंग. जब कूलिंग होता है तो वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है. वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है. अगेन डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब डेंसिटी क्या होगा चिल्ड्रन? ये टेम्परेचर रेंज में 4 to 0 डिग्री सेल्सियस. वेरी गुड. डेंसिटी डिक्रीजेस. डेंसिटी क्या होता है चिल्ड्रन? डिक्रीज होता है. डेंसिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको ये समझा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? ओके, एक बार ये प्रॉपरली गो थ्रू कर लो फ्रॉम द बोर्ड. जस्ट गो थ्रू दिस क्विकली एंड हमेशा याद रखना चिल्ड्रन, एक इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है. दे कैन आस्क यू वन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. Density of water is maximum at dash. So density of water is maximum at 4 degrees Celsius. Remember this. Okay, density of water is maximum at 4 degrees Celsius. Okay, ये नोट डाउन करना कि density of water यहां तक नीचे दिख रहा है सबको? Are you able to see this particular part? इधर नीचे जो लिखूंगा वो. ओके, तो अपने को क्या याद रखना है? Density of water is maximum at 4 degree Celsius. कितने डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस. Clear with this? Everyone has understood this? Anyone has any doubt? Okay, great. चलो, ये हमने अभी किया है. अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे Hope's apparatus. Okay, what we will be studying? We will be studying Hope's apparatus. अब Hope's apparatus अपने को पढ़ना है children. We have to study about Hope's apparatus. अब ये Hope's apparatus चीज क्या है? Okay, what is this Hope's apparatus thing?
अभी होप अपैरेटस क्या है चिल्ड्रन? एक हमारे पास ऐसे सिलिंड्रिकल कॉलम रहेगा. Okay, there is going to be a cylindrical column like this, and this cylindrical column ये पूरा जो कॉलम रहेगा that is going to be filled with water. हम लोग इसको किससे भर देंगे? हम लोग इसको वाटर से भर देंगे. Okay, पानी से भर देंगे. Okay, we will be having two you can say thermometers that we are going to insert. एक थर्मोमीटर हम लोग यहाँ पर डालेंगे. ओके, एंड इसको हम लोग बोलेंगे T1, थर्मोमीटर 1. क्या बोलेंगे हम लोग इसको? वी विल बी कॉलिंग इट एज थर्मोमीटर 1. एंड यहाँ पर हम लोग एक दूसरा थर्मोमीटर डालेंगे, एंड दिस थर्मोमीटर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज T2. क्या बोलेंगे हम लोग इसको? T2 थर्मोमीटर बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसको? T2 थर्मोमीटर बोलेंगे. एंड यहाँ पर बीच में हम लोग ना इसको एक जैकेट पहनाएंगे. ओके, जैसे हमारे कपड़ों का जैकेट होता है वैसे ही ये सब्सटेंसेस में भी जैकेट्स होते हैं. नाउ व्हाट इज दिस जैकेट? ये जैकेट ऐसा एक ये होता है चिल्ड्रन कि आप उसको बांध देते हो एंड साइड से यू कैन पुट आइस इन और यू कैन से हॉट वाटर या कुछ भी आप वहां पर रख सकते हो. सो वी आर गोइंग टू पुट फ्रीजिंग मिक्सचर इन हियर. क्या डालेंगे हम लोग चिल्ड्रन? वी विल बी कवरिंग इट विद फ्रीजिंग मिक्सचर. नाउ व्हाट इज दिस फ्रीजिंग मिक्सचर चिल्ड्रन? फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब योर आइस प्लस सॉल्ट. ओके, तो ये जो जैकेट रहेगा इस जैकेट में होगा फ्रीजिंग मिक्सचर. क्या होगा चिल्ड्रन? फ्रीजिंग मिक्सचर. ओके, फ्रीजिंग मिक्सचर होगा. नाउ व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? What will happen? Everyone has to pay attention here. Everyone has to pay attention. मेरे पास ये पूरा कॉलम है. ओके, मेरे पास ये पूरा कॉलम है which is filled with water. And मैं इसको यहाँ पर बीच में जैकेट लगा रहा हूँ. That jacket is of a freezing mixture. मैंने क्या बोला है? वाटर को हम लोग कूल कर रहे हैं. कूल कर रहे हैं. जब हम लोग कूल करते हैं तभी what is going to happen? It is going to contract. ओके, सपोज ये अंदर का पानी है एट 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, इट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द स्टार्ट. ओके, फॉर द स्टार्ट द वाटर इज एट 25 डिग्री सेल्सियस. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? हम लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, स्टार्टिंग टेम्परेचर is 25 degree Celsius. On adding freezing mixture jacket, temperature decreases. Water contracts. Its volume decreases, therefore density increases. Cool water settles down. Cool water क्या हो जाएगा? Settles down. अभी बोलोगे सर ने ये क्या लिखा है? मैंने इस वाटर को कूल करने के लिए शुरू किया. ये फ्रीजिंग मिक्सचर डालने मैंने इसको ठंडा करने के लिए शुरू कर दिया. ठंडा करने का प्रोसेस मैंने शुरू कर दिया. जब मैं इसको ठंडा कर रहा हूं चिल्ड्रन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द वॉल्यूम इट इज गोइंग टू गेट कॉन्ट्रैक्टेड. वो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है. इट्स वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज. उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा. वॉल्यूम डिक्रीज होना है मतलब क्या है? उसका डेंसिटी बढ़ने वाला है चिल्ड्रन. आपने अगर एक पत्थर है आपके पास, उसको पानी में आपने डाला तो वो पत्थर नीचे जाएगा ना, बिकॉज उसका डेंसिटी ज्यादा है. तो जैसे ही वाटर का डेंसिटी ज्यादा हो जाता है ऊपर के लेयर का, वो आके नीचे सेटल हो जाता है. फिर नीचे का गर्म वाला लेयर ऊपर जाएगा, वो ठंडा होएगा, वापस नीचे आएगा. फिर और लेयर्स जाएंगे, वो ठंडे होंगे, नीचे आ जाएंगे. बट 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ पर पहले अपने को नीचे दिखेगा. नीचे क्यों दिखेगा चिल्ड्रन?
बिकॉज उसका डेंसिटी मैक्सिमम है, पानी का डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो सबसे पहले नीचे वाला थर्मोमीटर शो करेगा। कौन शो करेगा? नीचे वाला थर्मोमीटर शो करेगा, एंड दैट इज T1। सो T1 बिकम्स 4 डिग्री सेल्सियस। T1 कितना हो गया है चिल्ड्रन? 4 डिग्री सेल्सियस हो गया है इधर। ओके, T1 अभी 4 डिग्री सेल्सियस हो गया है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? नाउ कम्स द ट्रिक पार्ट। सारा पानी कन्वर्ट हो गया है इनटू 4 डिग्री। ओके, सारा पानी 4 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया है और वो और कूलिंग चलने वाला है। बट नाउ ऑन कूलिंग फ्रॉम 4 to 0 degree Celsius, water expands its volume, increases, and density decreases। अभी क्या होगा चिल्ड्रन? अभी हम लोग कूलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। कूलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जब मैं कूलिंग कंटिन्यू करने वाला हूं, ये पानी जो नीचे वाला ठंडा है वो अब 4 से 0 डिग्री सेल्सियस कूल होने वाला है। एंड जब वो 4 से 0 डिग्री सेल्सियस कूल होगा चिल्ड्रन, तो इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग वाटर एक्सपैंड, ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो एक्सपैंड करेगा। वो एक्सपैंड करेगा तो क्या होने वाला है? उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एंड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा? उसका डेंसिटी डिक्रीज होगा। डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और डेंसिटी डिक्रीज होगा तो वो ऊपर राइज हो जाएगा, धीरे 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 ऊपर राइज हो जाएगा। और ऊपर राइज होने की वजह से क्या होगा? पहले यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस दिखे, यहां पर अपने को 0 डिग्री सेल्सियस दिखेगा। क्या दिखेगा अपने को यहाँ पर? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या दिखेगा अपने को यहाँ पर? 0 डिग्री सेल्सियस। एंड 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पहले दिखेगा, and then the entire water will get converted to 0 degree Celsius. Remember this. तो होप्स apparatus के ऊपर आपको वो अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। Now what are the different type of questions that they can ask you for hope apparatus? वो पूछेंगे कि बेटा मुझे बताओ ये apparatus से आप क्या स्टडी करते हो? तो हम लोग स्टडी करते हैं anomalous behavior of water। वो लोग बोलेंगे कि कौन से थर्मोमीटर में पहले 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखेगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर T1 पे पहले दिखेगा। कौन से आपके यू कैन से थर्मोमीटर पे पहले 0 डिग्री सेल्सियस दिखेगा? तो आप बोलोगे T2 पे। वो पूछ सकते हैं व्हाट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट डैश, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द फ्रीजिंग मिक्सचर? तो फ्रीजिंग मिक्सचर क्या है? आइस प्लस सॉल्ट। ओके, फ्रीजिंग मिक्सचर क्या है? आइस प्लस सॉल्ट। आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन? सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? एवरीवन? ग्रेट ग्रेट। अब और एक चीज मुझे आपको पूछनी है चिल्ड्रन, कि हम लोग ने यहाँ पर देखा कि पानी पूरा कन्वर्ट हो गया, पानी पूरा कन्वर्ट हो गया इनटू यू कैन से आइस। ओके, बट अभी मुझे एक चीज बताओ, हमारे यहाँ तो नहीं, बट सपोज कश्मीर है या फिर यू कैन से और कोई भी देश है जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, सब 0 टेम्परेचर होते हैं, 0 से कम टेम्परेचर होता है, तो उधर फिशेस कैसे सरवाइव करते हैं? हाउ डू द फिशेस सरवाइव? कैसे करते हैं फिशेस सरवाइव? द अपर लेयर टर्न्स टू आइस। वेरी गुड आविष्कार, वेरी गुड वेरी गुड। आविष्कार ने मुझे बराबर बताया है कि सर ओनली द टॉप लेयर गेट्स फ्रीज। ओके, ओनली द टॉप लेयर गेट्स फ्रीज। ऊपर का जो लेयर रहेगा, सपोज ये आपका पॉन्ड है, ये इसका ऊपर का लेयर है और यहाँ पर फिशेस। ओके, यहाँ पर ऐसे फिशेस घूम रहे हैं। पार्डन माय ड्राइंग अगेन। ओके, तो यहाँ पर आपके फिशेस घूम रहे हैं। फिशेस घूम रहे हैं तो क्या होने वाला है? यहाँ पर भी ऐसे ही सेम होप्स एपरेटस जैसे ही होने वाला है, 4 to 0 डिग्री सेल्सियस ये वगैरह सब हो जाएगा। एंड ये जो अपर लेयर है, दैट अपर लेयर विल गेट कन्वर्टेड टू आइस। ये ऊपर का लेयर आइस बन जाएगा, बट आइस इज अ बैड कंडक्टर। आइस इज अ बैड कंडक्टर, तो वो क्या करता है?
वो बाहर की ठंड को अंदर आने नहीं देता है। यहाँ पर क्या था, जैकेट बीच में प्लेस था, मतलब इधर अंदर जैकेट प्लेस है ऐसे समझो, इधर अंदर जैकेट प्लेस होता था तो फिशेस मर जाते थे। यहाँ पर क्या होने वाला है, द जैकेट इज इन हियर इन बिटवीन, दैट इज व्हाई ऑल ऑफ द वाटर हैज गॉट कन्वर्टेड, बट उधर वैसे नहीं होने वाला है, उधर केवल टॉप पर आइस है एंड नीचे है पानी, नीचे क्या है, पानी, एंड दिस वाटर इज एट 4 degrees Celsius and ice is a bad conductor. Ice क्या है, it is a bad conductor of heat and नीचे पानी है at 0 degrees Celsius and that is why the fishes can survive. Fishes survive कर सकते हैं. Is this clear to everyone? सबको समझा है ये particular चीज? Everyone? Does anyone have any doubt in this? किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? फास्ट नहीं जा रहा है ना चिल्ड्रन? आर यू फीलिंग दैट आई एम गोइंग फास्ट? बहुत फास्ट जा रहा हूँ, फटाफट भगा रहा हूँ वगैरह? पक्का ना? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। आई जस्ट क्लिक अ पिक्चर ऑफ दिस। Will there be a major or minor difference in when yes, थोड़ा सा minor difference होगा, and then all the water will get converted to 4 degrees. Graph based questions I don't think so ज्यादा पूछेंगे। What are the questions they are going to ask? मैंने होप्स apparatus का सारा क्वेश्चन बता दिया था ओजा तब भी थोड़े टाइम पहले ही मैंने आपको बोला था सारा क्वेश्चन। आप किधर थे? ओके, नाउ होप apparatus के क्वेश्चंस क्या क्या है मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। दे कैन आस्क यू इस apparatus से हम लोग क्या स्टडी करते हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी विद दिस पर्टिकुलर apparatus, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देन दे कैन आस्क यू डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट डैश। देन वो लोग पूछेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कौन से थर्मोमीटर पे पहले आता है, 0 डिग्री सेल्सियस कौन से इससे पहले आता है, फ्रीजिंग मिक्सचर में क्या प्रेजेंट होता है। These are all the type of questions that they can ask. Any query with this? किसी को कुछ भी query है? Okay. Then आपको पता रहेगा चिल्ड्रन के on cold regions जो होते हैं वहां पर पाइप बर्स्ट हो जाता है। ओके, पाइप बर्स्ट हो जाता है। क्यों बर्स्ट हो जाता है? बिकॉज ऑफ द सेम थिंग। 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर एक्सपैंड करता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, and that is why what happens is the pipeline bursts. Okay, clear with this? समझा है सबको? अभी अपने को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करना है चिल्ड्रन, एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी. व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन? ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी. ओके, नाउ व्हाट इज ह्यूमिडिटी? कोई भी मुझे ये पहले बता सकता है कि ह्यूमिडिटी मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी मतलब इट इज द मॉइस्चर कंटेंट। ओके, जो मॉइस्चर कंटेंट होता है एटमॉस्फेयर का, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द ह्यूमिडिटी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल बी कॉलिंग इट एज द ह्यूमिडिटी। ओके, जो मॉइस्चर कंटेंट है आपके पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर का, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। अभी मुझे एक चीज बताओ, हम लोग अगर मुंबई कंसिडर करते हैं तो मुंबई इज वेरी क्लोज टू, यू कैन से दी अरेबियन सी जो है उसके हम लोग काफी पास है। तो पास है हमारे पास, नजदीक जूहू बीच है, आस्था बीच है, देन मरीन ड्राइव है। अभी मुझे एक चीज बताओ चिल्ड्रन, जूहू चौपाटी है, बांद्रा है, बांद्रा के इधर हम लोग बैंड स्टैंड है। नाउ टेल मी, हमारे यहाँ का एयर ड्राई है या ह्यूमिड है? ह्यूमिड है हमारे इधर का एयर। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड। आपको पता है आपके सिटी के बारे में, वेरी गुड। तो ह्यूमिड एयर मतलब क्या चिल्ड्रन? ह्यूमिड एयर मतलब क्या? अभी आप आपके रूम्स में बैठे हो, ठीक है, मैं यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूँ, मैं वाकरे क्लासेस में बैठा हूँ,
आप आपके घरों में बैठे हो, मे बी अगर आपके घर में एसी अभी आपने ऑन नहीं किया है, ओके, इफ द एसी इज नॉट ऑन, आई एम स्वेटिंग, मुझे पसीना आ रहा है, ये देखो इधर मेरे को पसीना आ रहा है, पसीना है, पूरा पूरा शर्ट मेरा गीला हो गया है, आई एम स्वेटिंग, ठीक है। आप बैठे रहोगे आपके घर पे, आपको पसीना आ रहा है, ठीक है। नाउ हम लोग अगर बाहर जाते हैं, हम लोग कहीं पर चलने के लिए जाते हैं, मार्केट जाते हैं, ठीक है, तो मार्केट में अपने को पूरा ड्रेंच्ड हो जाते हैं अपनों, दैट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी विच इज प्रेजेंट, उसके वजह से हम स्वेट करते हैं। बट यही आप पुणे जाओ, यही आप नागपुर जाओ, वहां पर आपको पसीना नहीं आता है, वहां पर आपकी स्किन जल जाती है, ओके, वहां पर क्या होता है, आपकी स्किन जल जाती है बिकॉज ऑफ द ड्राई एयर विच इज प्रेजेंट। तो वहां का एयर इज नॉट ह्यूमिड, वहां का एयर इज ड्राई, वहां पर एयर क्या होता है, ड्राई होता है चिल्ड्रन। तो एयर का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है टू होल्ड मॉइस्चर, ओके, एयर का क्या होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी होता है टू होल्ड मॉइस्चर। उसके आगे अगर वो मॉइस्चर कंटेंट चला जाता है एयर का, देन द एयर कैन नॉट होल्ड दैट पर्टिकुलर मॉइस्चर इनटू इट, वो क्या करता है, द एयर गिव्स इट आउट इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, जैसे ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, हेल स्टॉर्म्स होते हैं, उस सॉर्ट में, ओके। सो ड्यू ड्रॉप्स जनरली जो होते हैं, आपने पता रहेगा, इफ यू गाइज माइट बी वॉचिंग क्रिकेट, तो डे एंड नाइट मैचेस होते हैं, पता है आपको, डे एंड नाइट मैचेस होते हैं क्रिकेट में, या फिर आईपीएल होता है, आईपीएल में शाम को 7 बजे 8 बजे गेम शुरू हो जाता है एंड इट गोज ऑन टू 11 o'clock। तो जब इंडिया या जब मुंबई इंडियंस का सपोज मैच है एंड इट इज एट वानखेड़े स्टेडियम, देयर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ ड्यू, वेरी गुड ध्रुव डाला, देयर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ ड्यू। ड्यू का फैक्टर होता है कि सब बोलते हैं इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी टू चेज, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी टू चेज, व्हाई, बिकॉज the water, the ball which is there, that is going to get wet, and ball अगर wet हो जाता है, then wet ball से practice करना या wet ball से bowling करना is really very very difficult, फिर full toss गिर जाता है and that goes for a 6, okay। So what happens is ड्यू जो है, ये जो ड्यू फैक्टर होता है, that is determined by the relative humidity, and relative humidity क्या है, कितना मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट है एंड कितना मॉइस्चर एयर को सैचुरेट कर देगा, दैट इज कॉल्ड एज योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। व्हाट इज इट कॉल्ड एज चिल्ड्रन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ओके। नाउ अब ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ विल वी फाइंड आउट, तो वी हैव टू फाइंड आउट परसेंट relative humidity. Now, what is percentage relative humidity? It is actual mass of water vapor present in air in a given volume divided by what, children? Mass of vapor required to saturate given volume of air into 100, into what, children? 100, okay. Actual mass of water vapor present in air in a given volume divided by mass of vapor required to saturate the given volume of air into 100. मतलब क्या है चिल्ड्रन, सपोज एयर का कैपेसिटी है 49 ग्राम, ओके, एयर का मैक्सिमम कैपेसिटी है 49 ग्राम एंड अभी 40 ग्राम है, 40 ग्राम इज मैनेजेबल, एयर उसको अब्सॉर्ब कर लेगा इजीली, ओके। ये बढ़ जाता है 45, चलेगा, एयर बोलता है अभी भी वो अब्सॉर्ब कर लूंगा,
48, एयर बोलता है 48 भी चल जाएगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा। और देन आ जाता है कि वाटर वेपर सैचुरेट हो जाता है टू 49, मतलब एक्चुअल मास इज 49, mass of water vapor required to saturate is 49 into 100. 49 cut 100%. Relative humidity is 100%. 100% मतलब क्या? ड्यू पॉइंट। अभी क्या है? ड्यू पॉइंट। ओके, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हमेशा याद रखना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट इज 100%। अभी अगर ये 49 का 50 हो गया, अगर वो 50 पे चला जाता है, देन 1 ग्राम एक्स्ट्रा हो जाता है। एंड 1 ग्राम अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो एयर उसको पचाएगा नहीं, एयर उसको बाहर निकाल देगा। जैसे हम लोग ज्यादा खाना खाते हैं तो वॉमिट करते हैं ना, वैसे ही एयर क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देगा। एंड दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। दैट विल बी व्हाट इट मीन इन द फॉर्म ऑफ precipitation. Clear with this? And यही phenomenon हम लोग देखते हैं children. The same phenomenon we are going to observe in, you can say, आपने देखा रहेगा ना वो प्लेन सुबह सुबह जाता है तो व्हाइट ट्रेल पीछे छूट जाता है, पीछे छूट जाता है। Why? Because the air is already saturated with water vapor. तो उसको ऑब्जॉर्ब करने के लिए टाइम लगेगा, बट अगर एयर ड्राई रहेगा तो वो व्हाइट ट्रेल दिखेगा भी नहीं, कभी कभी एकदम फेंट रहता है या व्हाइट ट्रेल दिखता ही नहीं है। दैट इज बिकॉज ऑफ कितना उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसके ऊपर ये सारी चीजें डिटरमाइन होंगी। क्लियर विद दिस? सबको समझा है? एवरीवन हैज फॉलोड दिस? एवरीवन? ग्रेट ग्रेट, ठीक है। इसका भी फोटो मारता हूं। एकदम होशियार बच्चे हो यार तुम लोग को फटाफट सब समझ जाता। ना नेक्स्ट अपने को पढ़ना है चिल्ड्रन यूनिट्स ऑफ हीट। क्या पढ़ना है अपने को चिल्ड्रन? वी हैव टू स्टडी अबाउट यूनिट्स ऑफ हीट। अब यूनिट्स ऑफ हीट अगर हम लोग बात करते हैं, जस्ट अ मोमेंट किड्स। ओके, नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट अपने को पढ़ना है अबाउट यूनिट्स ऑफ हीट। अब यूनिट्स ऑफ हीट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या है चिल्ड्रन? एसआई यूनिट इज जूल। ओके, एसआई यूनिट क्या है? इट इज जूल। ओके, एंड अगर हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो इट इज कैलन। ओके, सीजीएस यूनिट क्या है चिल्ड्रन? इट इज कैलन। ओके, अब 1 कैलोरी हीट क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर by 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज 1 कैलोरी। ओके, अभी सब लोग यहां पर ध्यान दो। 1 कैलोरी अगर हम लोग बात करें, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4.18 जूल्स। ओके, 1 कैलोरी मतलब क्या है? 4.18
joule. Okay, 1 calorie is going to be 4.18 joule. 1 calorie क्या है? It is amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 to 15.5 degree Celsius. Okay, that is going to be called as 1 calorie. Okay, अब 1 kilocalorie मतलब क्या है? Amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of water by 1 degree Celsius from 15.5 to from 14.5 to 15.5. And 1 kilocalorie is going to be equal to 1000 calories. 1 kilocalorie मतलब क्या है children? It is going to be equal to 1000 calories. Remember this. अगर हम लोग ये टेम्परेचर रेंज कोई दूसरा पकड़ते हैं, सपोज मैं 28 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस पकड़ता हूँ, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है इन द एक्चुअल वैल्यू. एक्चुअल वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको समझा है यूनिट्स ऑफ हीट? इज एवरीवन क्लियर अबाउट यूनिट्स ऑफ हीट? ओके, अब स्पेसिफिक हीट अपने को पढ़ना है चिल्ड्रन. व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? Specific heat is going to be the property of every substance. Okay, it is going to be, you can say, for every particular substance. Okay, specific heat जो है, that is going to be for a property specific to every substance. तो जब हम लोग specific heat के बारे में बात करते हैं, specific heat क्या है children? The amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius is called as specific heat of that substance. Okay, amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius. That is going to be called as what? That is going to be called as specific heat. क्या बोलेंगे हम लोग इसको? Specific heat. Okay? अगर हम लोग यूनिट्स बात करेंगे, यूनिट्स दो हैं, उसके SI यूनिट है और उसका CGS यूनिट है. SI यूनिट इज joule per kg degree Celsius. What is it? Joule per kg degree Celsius. And इसका है calorie per gram degree Celsius. This is the SI unit and this is the CGS unit. Joules per kg degree Celsius and calorie per gram degree Celsius. अभी latent heat और specific heat में confuse मत होना. Specific heat में temperature changes stay same. Specific heat में क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होने वाला है बट फेज सेम रहता है. ओके, स्पेसिफिक हीट में क्या होगा? टेम्परेचर चेंजेस बट द फेज रिमेन्स द सेम. इसमें तो कुछ क्वेरी डाला है, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेक. यस, केल्विन में भी आप मेजर कर सकते हो. दैट इज फॉर टेम्परेचर बेटा. ओके, स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर चेंजेस बट द फेज रिमेन्स द सेम. एंड 14.5 टू 15.5 पे वो एग्जैक्टली 1 कैलोरी आता है. इट कम्स टू एग्जैक्टली 1 कैलोरी. दैट इज व्हाई हम लोग कंसिडर करते हैं. अगर आप दूसरा टेम्परेचर रेंज लेते हो देन इट मे वेरी, वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है. क्लियर विद दिस? ओके, सो स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर चेंजेस बट द फेज रिमेन्स द same. Okay, temperature changes but the phase remains the same. Clear with this? सबको समझा है ये? ठीक है, चलो. Now we'll move ahead. अब next है children
principle of heat exchange. सपोज एक हॉट बॉडी है and there is a cold body. Okay, there is a hot body and there is a cold body and they are kept in close physical contact with each other. Okay, if a hot body and a cold body are kept in close contact with each other, the hot body loses heat and the cold body gains heat. ऑब्वियस है ये चीज चिल्ड्रन। चाय जब हम लोग लेते हैं तब चाय गर्म नहीं हो, चाय गर्म होती है, कब गर्म होता है क्या? नहीं, कब गर्म नहीं होता है। ओके, कब गर्म नहीं होता है, बट जब हम लोग गर्म चाय उस कप में डालते हैं तो आफ्टर सम टाइम द कप आल्सो बिकम्स हॉट। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, नथिंग एल्स। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज, अगर हम लोग ये जो पूरा सिस्टम है we keep it isolated from the surroundings, अगर हम लोग उसको सराउंडिंग से आइसोलेट कर देते हैं, then if system is kept isolated, heat lost by hot body is equal to heat gained by cold body. जो हीट रहता है by hot body, that heat lost by hot body, that is going to be equal to the heat gained by cold body. अगर हम लोग इसको पूरी तरीके से आइसोलेट करते हैं, तो अगर हम लोग इसको पूरी तरीके से आइसोलेट करते हैं, then heat lost by hot body is equal to the heat gained by cool body. Clear with this? अभी स्पेसिफिक हीट का हम लोग एक मेजर करते हैं by using the कैलोरीमीटर। अब कैलोरीमीटर क्या है चिल्ड्रन? कैलोरीमीटर में अलग अलग यू कैन से मॉडल्स होते हैं, बट एक सिंपल अगर मैं कैलोरीमीटर आपको दिखाऊं तो एक आपको मे बी कोई तो यू कैन से कोल्ड ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, कोल्ड ऑब्जेक्ट रहेगा, या आपके पास सपोज सिंपल वाटर है। ओके, इस वाटर में मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक हॉट ऑब्जेक्ट डाल रहा हूं। ओके, आई एम गोइंग टू पुट अ हॉट ऑब्जेक्ट इनटू दिस water. Okay, hot object, and ये जो यहाँ पर present है, that is going to be called as a calorimeter. क्या बोलेंगे हम लोग इसको? We will be calling it as calorimeter. Okay, अब हम लोग जब इसके बारे में बात करते हैं, ये hot object में इस water में डाल रहा हूं। Water is the cold object. Water को हम लोग क्या बोलते हैं? We call it as the cold object. This is the hot object. ये hot object अपनी heat इस पानी को देने वाला है और अपनी heat इस system को देने वाला है, इस system को देने वाला है। That is the calorimeter. Okay, so heat lost by hot object is equal to
heat gained by cold object plus heat gained by calorimeter. Okay, heat gained by calorimeter. So the heat lost by hot object is going to be equal to the heat gained by cold object plus the heat gained by calorimeter. Clear with this? Okay, that is this Q. अगर हम लोग heat loss by hot object को Q बोलते हैं, so that is equal to Q1 plus Q2. Heat loss by hot object is equal to the heat gained by cold object. Clear with this, children? Okay, everyone has understood this. किसी को कुछ डाउट है? जनरली आयन, कॉपर और लेड ऐसे तीन मेरे पास मेटालिक स्फीयर्स रहेंगे. तो आयन का स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा, फिर कॉपर का और फिर लेड का. रिमेंबर दिस. इसके लिए आयन अगर हम लोग ये तीनों को वैक्स लेयर में डालेंगे सेम टेम्परेचर्स पे लेके जाके, तो आयन सबसे ज्यादा नीचे धसेगा उस वैक्स लेयर में, कॉपर उससे कम धसेगा, लेड उससे कम धसेगा. बिकॉज आयन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, कॉपर का उससे कम है, लेड का उससे भी कम है. क्लियर विद दिस चिल्ड्रन? चिल्ड्रन इसके बेसिक सम्स करना एंड स्पेसिफिक हीट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला इज m into c into delta t. m is the mass, c is the specific heat and delta t is temperature change. Delta t is what? Temperature change. मतलब समझो हॉट बॉडी है, वो उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है फ्रॉम यू कैन से 50 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस. कूल हो रहा है ना वो, बिकॉज इट इज गिविंग आउट इज हीट. देन हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट? m into c into delta t. उसका मास कितना है, उसका स्पेसिफिक हीट कितना है एंड उसका टेम्परेचर कितना है. दैट इज द टेम्परेचर चेंज. मतलब 50 minus 30, that is 20 degree Celsius. That is how we will be calculating the heat lost by the hot object. Is this clear to everyone? सबको समझा है ये? एंड वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 1. ओके, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको समझा है? एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? पक्का? श्योर? ओके, ग्रेट. क्या बोला है? एक मिनट. ड्यू पॉइंट क्या होता है? सपोज एयर का कैपेसिटी है, देयर इज सम कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर वेपर, एंड उतना अगर मैक्सिमम वाटर वेपर उसका जो सैचुरेट उसको कर देता है उतने एयर में प्रेजेंट है, देन द ड्यू पॉइंट का कंसेप्ट आता है कि एयर का कैपेसिटी है सपोज 49 ग्राम एंड 49 ग्राम उसमें पूरा सैचुरेट हो गया है, देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिकम्स 100. 49/49 into 100. तो 100% मतलब क्या? अभी ड्यू पॉइंट है. नाउ द ड्यू फॉल्स विल अकर, ड्यू ड्रॉप्स विल फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ड्यू. कि ड्यू पॉइंट का कंसेप्ट क्या होता है कि एयर का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है टू होल्ड वाटर वेपर. अगर वो मैक्सिमम कैपेसिटी तक रीच हो जाता है, देन ड्यू पॉइंट विल अकर. ड्यू पॉइंट इज गोइंग टू अकर. ओके, विद दिस आई गेस मेटालर्जी अभी कैसे हम लोग शुरू करें? What is the time? It's almost, we have very less time actually. ठीक है, मैं एक आपको जस्ट ब्रीफ आइडिया देता हूं मेटालर्जी का. आई जस्ट क्लिक अ पिक्चर ऑफ दिस एंड आई गिव यू अ ब्रीफ आइडिया ऑफ मेटालर्जी एंड देन वी विल स्टॉप हियर. हम लोग यहाँ पर रुक जाएंगे. ओके, अब मेटालर्जी में चिल्ड्रन हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट आर वी गोइंग टू बी स्टडिंग इन मेटालर्जी? तो मेटालर्जी में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, latent heat में no change in you can say temperature,
specific heat में temperature changes but the phase is you can say the phase remains constant. मेटालर्जी का अगर हम लोग बात करते हैं चिल्ड्रन, तो पहले आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आप छठी से पढ़ रहे हो. दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, they are malleable, they are ductile, they have a high, you can say, boiling point, melting point, they are good conductors of heat and electricity. Then metals are sonorous. ये सारे प्रॉपर्टीज आपने पढ़े हैं. देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स अगर हम लोग बात करते हैं, तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स आर गोइंग टू बी सॉफ्ट एंड ब्रिटल. Okay, non-metals are going to be soft and brittle. They are non-malleable, non-ductile. कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जो malleable होते हैं, जो ductile होते हैं. ग्राफाइट होता है, वो हम लोग स्टडी करेंगे. कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे हम लोग डायमंड का एग्जांपल ले सकते हैं. इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस व्हिच इज नोन. देन हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फिजिकल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में मेटल का रिएक्शन है विद ऑक्सीजन, मेटल का रिएक्शन है विद वाटर. देयर आर गोइंग टू बी डिफरेंट रिएक्शंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. एंड देन यू कैन से हम लोग आगे जाने वाले हैं टुवर्ड्स रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड. Okay, then we go to chemical properties of non-metals, physical properties of non-metals, and then we come down to metallurgy. अब metallurgy में basically क्या होता है कि एक मेरे पास ओर है, तो ओर से मैं रिफाइंड मेरा आपका ये कैसे ऑब्टेन करूं, मेटल कैसे ऑब्टेन करूं, दैट इज गोइंग टू बी स्टडीड इन metallurgy. And then we have to study about extraction of aluminium. extraction of aluminium पढ़ने के बाद corrosion पढ़ना है अपने को. corrosion के बाद हम लोग corrosion कैसे prevent कर सकते हैं वो चीजें पढ़नी है. इलेक्ट्रोमेटालर्जी, alloying, electroplating, ये सारी चीजें हम लोग को मेटालर्जी में पढ़नी है. So we will try to do it in the next class. हम लोग उसको next class में करेंगे, because I don't think so there is time now. 11 o'clock को lecture end होगा. So that is why next class तक आप ये chapter read कर लेना. Read this chapter thoroughly. It's a big chapter, बड़ा chapter है काफी. आपको उसको properly read करना पड़ेगा. Practice diagrams नहीं, diagrams draw करने के लिए नहीं आएंगे. Don't worry. Any omissions है, but थोड़ा पार्ट है, जैसे पॉलीमर्स वगैरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओमिटेड है. यहाँ पर मेटालर्जी वगैरह ज्यादा बेटा ओमिटेड नहीं है. सो दैट इज व्हाई फुल फ्लेज्ड पढ़ाना इज ऑलवेज बेटर. जैसे ये चैप्टर है हम लोग ने पूरा पढ़ा दिया. इसमें न्यूमेरिकल्स जनरली नहीं आएंगे. जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं वो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आएंगे चिल्ड्रन. सो डोंट वरी अबाउट इट. दोस डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स यू आर नॉट गोइंग टू बी गेटिंग. ठीक है. एंड देन अपना एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी रहेगा, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हम लोग करें. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी को कुछ डाउट है आज के लेक्चर में जो पढ़ाया है उसके ऊपर? थोड़ा सा यू माइट हैव फेल्ट चिल्ड्रन के फास्ट जा रहा है वगैरह, थोड़ा सा फास्ट जा रहा है, बट दैट इज फाइन. वी हैव टू मेंटेन द पेस. अगर पेस मेंटेन नहीं होता है तो नहीं चलेगा. ठीक है, चलो देन we'll stop here and we'll continue on the next class. Okay children, bye bye, take care and stay safe. Bye bye.